آج کی اس تقریب کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ بچے ہیں، ان کی میزبانی ہم کر رہے ہیں. ادھر آؤ، ذرا تم میرے پاس آؤ. تم نے جو اپنے گفٹ اتنے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں نا، تم میرے پاس آؤ ادھر. اچھا مجھے بتاؤ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں طاہر. طاہر نام ہے آپ کا؟ ساحر نام ہے، بہت پیارا نام ہے آپ کا. یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ کیا ہے؟ چپس ہیں؟ بھوک لگ رہی ہے؟ ابھی کھانا بھی کھائیں گے ہم، ابھی کھانا بھی کھائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ تمہارا دوست کون ہے ان میں سے کون دوست ہے؟ کس سے ساتھ کھیلو گے؟ میرے ساتھ کھیلو گے؟ میرے ساتھ کھیلو گے؟ چلو اچھا میری بات سنو بچوں، یہ بتاؤ مجھے کہ سب سے اچھی گیم کون سی لگتی ہے تمہیں؟ کرکٹ دیکھتے ہو تم لوگ؟ کرکٹ کا شوق ہے سب کو؟ ہے؟ اچھا کرکٹ مجھے بتاؤ کہ کون سب سے اچھی کھیلتا ہے کرکٹ؟ تم کھیلتے ہو؟ بالنگ کرتے ہو بیٹنگ کرتے ہو؟ بالنگ تینوں چیزیں. پلیئر کون سا پسند ہے؟ فیلڈنگ. افریدی پسند ہے. اور آپ سب کو کون کون سا پلیئر پسند ہے؟ افراز. اور آپ کو کون سا پسند ہے؟ کوئی سا بھی دیکھ لیتے ہو آپ. کرکٹ کا شوق ہے ویسے آپ کو؟ ویری گڈ. ناظرین جتنی باتیں ان بچوں سے اب تک ہم نے کی ہیں اور اس کیوٹ بیبی سے خاص طور پہ کی ہیں، جو میں کیا لفظ استعمال کروں، جو آپ کے ہمارے بچے ہیں جن کے سر پہ ابھی بھی دست شفقت موجود ہے، کیا ان کی گفتار میں، ان کی باتوں سے آپ کو لگا کہ کچھ بھی اب نارمل ہے؟ کیا آپ کو لگا کہ کچھ بھی ایسا ہے کہ یہ بچے نہیں کر سکتے؟ ہاں جو چیز مسنگ ہے وہ صرف اور صرف پیار ہے، وہ آپ کا ہمارا پیار ہے. اگر شفقت پدری سے محروم ہے تو اس کا میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا 100% مداوع ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان بچوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے جو آپ کے ہمارے بچوں میں، اگر ہم کہیں کہ جناب ان کے اوپر چونکہ شفقت پدری ہے، ماں باپ کا سایہ، تو وہ کچھ اور طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، ان بچوں میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، ان بچوں میں صلاحیت نہیں ہے، صرف اور صرف ضرورت ہے آپ کے اور ہمارے پیار کی. اور میزبانی کرنے کے لیے یہاں پر سیاسی شخصیات بھی موجود ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا رضا ہارون صاحب نے، پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں سے ایک. رضا بھائی کیسا لگ رہا ہے کہ آج یہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں اور آج ہم ان کی، اور ایک بڑی اچھی بات آج کی تقریب کی رضا بھائی کہ جو ایک خاص لفظ منسوب ہے ان سے، اس کو آج ہم ریپلیس کرنے جا رہے ہیں. ہم ان کا نام رکھ رہے ہیں یہ باہمت بچے ہیں، یتیم بچے نہیں، یہ باہمت بچے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بڑا نیک کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سوالیہ نشان بھی آپ دے رہے ہیں آج ریاست کو. بنیادی طور پہ ہمارے ملک کے اندر جو ہمارا یہ ولنریبل طبقہ ہے، جو بچے ہیں جن کے والدین کسی وجہ سے اب اس دنیا میں نہیں ہیں، یا تو دونوں پیرنٹس نہیں ہیں یا ایک پیرنٹ نہیں ہے، یہ بنیادی ذمہ داری قانون اور آئین جو ہے ریاست کی لگاتا ہے. ریاست اگر یہ کام نہیں کر رہی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بہت بڑی پکڑ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں ایک حدیث ہے، اور حضور جتنا پیار کرتے تھے یتیموں سے کوئی دنیا کا آدمی نہیں کر سکتا. اور وہ فرماتے ہیں کہ جو یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھے گا، دل سے رکھے گا، ان کی پرورش کرے گا، اپنا حصہ ڈالے گا، وہ قیامت کے روز میرے ساتھ کھڑا ہوگا. تو میرا سوال ہے وزیر اعظم صاحب سے، وزیر اعلیٰ سے، اور جو لوگ بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ کے اپنے بچوں کے مسئلے ہوں تو اربوں روپے، لیکن یار یہ ہمارے بچے نہیں ہیں. ریاست کی حکمرانی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے. ریاست اس میں کافی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذمہ داری جیسا کہ آپ نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ایگری کروں گا آپ سے. اچھا بطور فرد، بطور پاکستانی اور اس سے بڑھ کے بطور مسلمان، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ذمہ داری بھی ہم نہیں نبھا پا رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی ایک عام شہری ہے نا، اس سے بڑا تو کنٹریبیوٹر ویلفیئر کو کوئی ہے نہیں. یہ پاکستان کھڑا اسی وجہ سے. 200 ارب روپے سے زائد، ابھی حالیہ ریسرچ ہے نا، 200 ارب روپے سے زائد یہ پاکستانی قوم فلنتھرپی کرتی ہے، انہی کاموں میں دیتی ہے. لیکن انڈیویجولز یا گروپ آف پیپل یا ایون سوسائٹیز یہ کام نہیں کر سکتی. ہیلپ کر سکتی ہیں، لیکن صرف اور صرف ایک ریاست جو مضبوط ہوتی ہے، جس کے پاس مسائل ہوتے ہیں، ریاست ہی ہے جس نے ماں بھی بننا ہے ان کا اور باپ بھی بننا ہے. وہاں میں سمجھتا ہوں کمزوری آ رہی ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں کوتاہی ہو رہی ہے، اور کہیں یہ گناہ اور بہت بڑی ان سے کہیں بہت بڑا ظلم نہ سرزد ہو جائے. تو پلٹیں، رکیں، سوچیں. آج آپ کا پروگرام ہے کیا؟ ٹو کریٹ اویئرنیس. آپ پروگرام کر رہے ہیں، آپ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں نا.
इनको अपना बच्चा समझना शुरू करें ना, सिर्फ हमारे 2 ही बच्चे तो नहीं होने चाहिए जो हमारे घर में, ये इनको हमारी जरूरत है। बच्चों आपको पता है अंकल कौन है? रज़ा भाई बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। नाज़रीन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, सियासी शख्सियात भी हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं, मकसद सिर्फ यही है, इन बच्चों का हौसला तो बढ़ाना है, इनको बताना है कि हम आपके साथ हैं। जो एक अकेलेपन का तासुर इन्हें मिल जाता है किसी भी हादसे के बाद, उस तासुर को ख़त्म करना है। और जैसा कि मैं एक पहले बात कर चुका हूँ कि वो लफ्ज़ जो इनसे मंसूब किया गया नाज़रीन, वो लफ्ज़ आज के बाद हम तहैया कर लें, इस्तेमाल नहीं करना। जावेद इकबाल साहब, जाना माना नाम है पाकिस्तान मीडिया का। जावेद भाई, सर हम वो लफ्ज़ हटाना चाह रहे हैं आज, ये बाहिम्मत बच्चे हैं हमारे, लेकिन क्या हम वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि हम इनके लिए कुछ कर पाएँ? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इस जज्बे को सलाम करना चाहिए कि जिस जज्बे की बुनियाद पे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और फिर उसके बाद जो आज हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इस लफ्ज़ को तब्दील कर रहे हैं, ये हमारे बाहिम्मत बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका सहारा हम सब हैं, जिसका सहारा हम पूरी कौम है, पूरा पाकिस्तान है। और फिर इतने मुक़द्दस महीने में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरे ख़्याल में ये वो स्पिरिट है कि जिसकी बुनियाद पे आप, मैं, हम सब, हमारे और कोलीग्स दूर दूर से कराची आए हुए हैं और वो यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे ख़्याल में हमें इनको इस तरह से बेदस्तोपा भी नहीं छोड़ना होगा, हमें इनका सहारा भी बनना होगा, और हमें इन्हें ज़िंदगी में एक बाइज़्ज़त शहरी बनाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे, जो दीगर मेहमान आए हुए हैं उनसे भी क्या सोच रखते हैं इस नोबल कॉज के लिए। मुबश्शिर ज़ैदी साहब हमारे उस्ताद भी, हमारे भाई भी हमारे मौजूद हैं यहाँ पे। मुबश्शिर भाई, ये इवेंट एक बहुत बड़ी बात है, ये इसमें कोई शक नहीं कि आपने एक इनिशिएटिव लिया और आपने कहा कि नहीं, हम इनको यतीम नहीं कहेंगे, बाहिम्मत बच्चे कहेंगे। मुबश्शिर, इस इवेंट से बढ़ के कुछ होना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी तो यहाँ पे इस इवेंट पे ख़त्म हो जाएगी, नहीं ख़त्म हो गया, आगे इनको बहुत चैलेंजेस हैं। देखिए, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन इस तरह के इनिशिएटिव इस बात को इंश्योर करता है कि कम अज़ कम माशरे में वो रमक बाकी है कि हम केयर करते हैं इन लोगों की। और जब केयर करते हैं तो पहला एहसास है कि आप इनका एहसास करें कि ये माशरे का ही हिस्सा हैं, इनका माशरे में तरक्की उतना ही इनको फेयर चांस मिलना चाहिए जितना मुझे या आपको मिला है। सिर्फ इस वजह से कि ये जो है इनका ये यतीम हैं, जो कि तो इनको ज़्यादा मेरे ख़्याल में चांस मिलना चाहिए। और मीडिया के अंदर भी मेरा ये ख्याल है कि कुछ एहसास बढ़ा है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं हमारे मुल्क में, उनको अब मेन स्ट्रीम पर जगह दी जाए, उनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि सिर्फ हमदर्दी करना काफ़ी नहीं होता इनके साथ आप, और ना ही शायद ये आपसे हमदर्दी मांगते हैं, ये सिर्फ अपना हक मांगते हैं। और वो हक ये है कि इनको माशरे में आगे बढ़ने का उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना मुझे और आपको। बहुत शुक्रिया आपका। बच्चे और भी हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे। बड़ा प्यारा मैसेज जो आपको हमें सुनने को मिल रहा है, और मैं समझता हूँ ये सिर्फ मैसेज की हद तक नहीं है, बाकी एक ऐसी फीलिंग है जो अब डेवलप हो चुकी है पाकिस्तानियों के अंदर। हम फिलंथ्रॉपी में बहुत आगे हैं। जैसे रज़ा भाई ने कहा कि 200 अरब सालाना जो है वो हम खैरात या ज़कात या सदक़े के तौर पे करते हैं। इन बच्चों पर हक है, ये बच्चे जो हैं, इससे पहले कि कल को किसी और ऐसी एलिमेंट्स के हाथ लगें जो उनका गलत इस्तेमाल करें, इन पर ये हम पर कर्ज है इनकी कफ़ालत। मैं ये नहीं कहता कि आप खैरात करना बंद कर दें, लेकिन जो करते हैं वो ये ज़रूर देखिए कि वो सही जगह पर मुस्तहिकीन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और हर मकतबा फ़िक्र से आने वाले लोग भी मौजूद हैं, मीडिया से रिलेटेड सियासी शख्सियात भी। दुआ ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। मैम, बच्चों के लिए इंडिविजुअल तो बहुत करते हैं, अभी बताया जा रहा था कि अरबों रुपए की खैरात सदकात पाकिस्तानियों में ये चीज़ है, वो करते हैं। जो शिकायत हुई, वो शिकायत की गई सियासतदानों से, स्टेट से, कि स्टेट ने अपनी वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जो इन बच्चों के लिए निभानी चाहिए। एग्री करती हैं आप इससे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज जो अलमिया है पाकिस्तान का कि यहाँ पर हमारे हुक्मरान बजाय इनका ख्याल रखने के इन्हीं के हुकूक पे डाका डालने वाले हमारे आज सरों पर हुक्मरान बनकर बैठे हुए हैं। चाहे तालीम का शोबा हो, चाहे सेहत का शोबा हो, हम रोज़ बरोज़ यहाँ पर पस्ती में जा रहे हैं। हम यहाँ पर किसी किस्म की तरक्की या 21वीं सदी आपको यहाँ नज़र नहीं आती। और रमज़ान का ये महीना है और PMC ने बहुत अच्छा एक इक़दाम
इल्ज़ाम उठाया है, और मैं समझती हूँ कि मीडिया जिस चीज़ का बेड़ा उठा ले तो उसमें कोई अच्छा हो ना हो, लेकिन ये है कि मीडिया जिस चीज़ में आ जाए तो फिर उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। और गुड लक तमाम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया दुआ साहिबा आपका। और बच्चों से बात करते हैं आके जी, यहाँ पे बच्चे जो छोटे छोटे मौजूद हैं, तकारीर भी चल रही हैं नाज़रीन साथ साथ, और जो बच्चे हैं वो भी अपने अपने खेल, अपनी मौज मस्ती में वो भी साथ। क्या हाल है आपके, क्या खा रहे हो? अच्छा, मुझे नहीं दोगे? दोगे? ये तुमसे ले लूँ ये वाला, ये दोगे मुझे जूस अपना? कहाँ डाल रहे हो? अंकल को नहीं दो? क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? बॉबल खा रहा है। अंकल को नहीं दोगे? क्या करते, ईद पे क्या करते हो? ईद पर बहुत अच्छा ही गुजारते हैं, बहुत मजा आता है बड़ा। अच्छा, दोस्तों के साथ खेलते हो? दोस्तों के साथ जाते खेलते हैं। चलो वेरी गुड जी। यहाँ पे और भी बच्चे मौजूद हैं, कुछ उनसे भी बात करेंगे हम साथ साथ नाज़रीन, और जो सियासी शख्सियात यहाँ पर आ रही हैं उनसे भी हम बात करेंगे। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात ख़ूं चुका।
कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। नाज़रीन, इस खूबसूरत तकरीब को जिसमें बच्चे मेहमान खुसूसी हैं, जिसमें इस अहमियत को उजागर किया गया कि न सिर्फ हमारे माशरे का हम हिस्सा हैं बल्कि हमें इनके लिए कितनी मेहनत और कितनी लगन से काम करना होगा ताकि माशरे का अच्छी शहरी बन सके। ज़िया साहब हमारे साथ जो मौजूद हैं। नाज़रीन, इस तकरीब के और इस इनिशिएटिव के रूह रवा सर, पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि आपने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया शऊर उजागर करने के लिए और हम जैसे सोए हुओं को, गफलत के मारे लोगों को जगाने के लिए कि ये बच्चे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुझे बताएं सर, प्लान क्या है आगे इन बच्चों के लिए? असल में बुनियादी सोच ये थी कि जो सारे मीडिया के लोगों ने मेहनत की, पाकिस्तान मीडिया क्लब चूँकि सारे मीडिया पर्सन है, एंकर्स है, प्रोड्यूसर्स है, तो ये था कि इनके बारे में एक परसेप्शन है तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने मसाइल देखते हैं, अपने इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं। इनकी खूबसूरती ये है कि इनके इंतज़ामात, इनकी सारी मेहमानों को अटेंड करना, वो सारे एंकर्स हैं, सारे प्रोड्यूसर्स हैं। दूसरी बात ये थी कि देखिए हमारा काम फंड रेजिंग नहीं है, हमारा जो काम है एज ए मीडिया पर्सन कि हम शूर की सतह को बुलंद करें, माइंड सेट को तब्दील करें। और हमने आज पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उसके अलावा सिविल सोसाइटी को, शोबिज़, मीडिया, क्रिकेटर, सबको एक पिच पे जमा कर रहे हैं। और वो ये है कि हम हिम्मत बनाएं इन बाहिम्मत बच्चों की और साथ साथ इनका नाम भी तब्दील करें। क्यों ना हम इसको बाहिम्मत बच्चे बोलें, क्योंकि ये यतीम के हम उनको जो उर्दू ज़ुबान में एक डिग्रेड हो रहे होते हैं, अपने आप को कमतरी का शिकार महसूस करते हैं। हम चाह रहे हैं बाइज़्ज़त हिस्सा बने सोसाइटी। इस इशू के लिए मुख्तलिफ डिफरेंसेस, मुख्तलिफ मसलकों के, मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे, एक छत के नीचे जमा। इंशाअल्लाह वक्त लगेगा लेकिन सोसाइटी के लिए सारा मीडिया अपना किरदार अदा करेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया जी। आए ज़रा और मेहमानों से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा रुबीना कायम खानी साहबा मौजूद हैं। बच्चों के हमरा वो भी मौजूद हैं और जब मैं आया मैंने देखा बच्चों में वो भी घुल मिल गई थी। कायम खानी साहबा, ये बच्चे इन्हीं चीज़ों को तरसते हैं जो आज आप और हम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो क्या ये बेहतर हो कि हम इसको एक रोज़मर्रा का मामूल बना लें? इसके लिए स्टेट, हुकूमत, फ़र्द, तो हम देखते हैं फ़र्द की हैसियत से लोग काम करते हैं, स्टेट क्या कर रही है इसके लिए? मैं ये कहूँगी कि ख़ास तौर पर जब फेडरल में जब हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उस वक्त हमने बैतुल माल के थ्रू जो है वो, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी और हम तमाम मेंबर्स ने ये एक डिसीजन किया था कि जो ख़ास तौर पर हमारे ये बच्चे हैं
जो मैं ये कहूँगी कि ये फ्रेंड्स मतलब हमने इनको उस वक्त नाम दिया था और जो है वो उस वक्त हमने ये जो है वो स्टार्ट किया था कि इस तरह के बच्चों को एक कोई शेल्टर होना चाहिए जहाँ पर इनका रिहाइश हो, जहाँ पर इनकी एजुकेशन हो और जहाँ पर ये उसी तरह से लाइफ गुजार सकें जहाँ जिस तरह से एक दूसरे नॉर्मल बच्चे जो है वो बोर्डिंग में या उनकी बोर्डिंग होती है या इस तरह से। तो वो प्रोजेक्ट हमने स्वीट होम के नाम से शुरू किया और माशाल्लाह से आज उसमें 4,500 बच्चा जो है वो पढ़ भी रहा है, उनकी कफालत भी हो रही है और वो एक फुल ऑफ लाइफ। अगर आप देखें कि जब मुझे याद है कि कुछ बलूचिस्तान से बच्चे हम लेकर आए थे तो वो टूथपेस्ट भी खा रहे थे और लेकिन आज अगर वो बच्चे अगर आप देखें तो वो माशाल्लाह से 12-12, 13-13 साल के हो गए हैं और एक खुशी महसूस होती है। बहरहाल मैं ये कहूँगी कि स्वीट होम जैसे प्रोजेक्ट्स तो खैर हमने शुरू किए, लेकिन जहाँ पर बात आती है बच्चों के हकूक़ के हवाले से, ख्वाह वो ऑर्फन बच्चे हों, ख्वाह वो कोई भी एलीट क्लास के बच्चा हो या नॉर्मल तबके का बच्चा हो, हर बच्चे का हक है कि वो अच्छी तालीम हासिल करे, अच्छी सेहत उसकी हो। जो बच्चे इस ऑर्गेनाइजेशन की कफालत में आ गए वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं ऐसे बच्चे या तो किसी होटल पे छोटा बन के काम कर रहे होते हैं, किसी वर्कशॉप में काम सीख रहे होते हैं। अच्छा, उस हवाले से लेबर लॉज आपके बड़े सख्त हैं गवर्नमेंट के जो है, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, कुछ इस पर भी तवज्जो देंगे? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि लॉज बनना एक पहला स्टेप होता है और उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना भी, जो ख़ास तौर पर अगर जिस तरह से लेबर जैसे महकमे हैं या जिस तरह से सोशल वेलफेयर का महकमा है, वो फिर इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो लॉज उनके डिपार्टमेंट्स के हवाले से बने हैं उनको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो। और हमने भी जब मैं बीइंग फॉर्मर मिनिस्टर बहुत सारी चीज़ें जो लॉ हमने पास किया, हमने कोशिश की कि उसको इंश्योर करें कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो और हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी गए, तमाम डिवीज़न में जो है वो अवेयरनेस कैंपेन भी की। तो ये सारी चीज़ें जो है क्योंकि जब हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स की में आता है आपको जो ख़ास तौर पे जिनके हकूक़ की बात कर रहे हैं उनको हम अवेयर करें, उन लोगों को बताएं कि ये आपके राइट्स हैं, ये आप हासिल कर सकते हैं और इस तरह से जो है अपने हकूक़ तक आप रसाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़ास तौर पर अपनी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में जो है अवेयरनेस भी देने की ज़रूरत है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के जो रेलिवेंट जो मैं समझती हूँ इदारे हैं उनको जो है स्टेप्स जो है सिर्फ और सिर्फ कहने की हद तक नहीं, उनको प्रैक्टिकली भी जो है वो ये स्टेप्स। बहुत शुक्रिया रुबीना साहबा आपका। बच्चों से भी बात हो रही है हमारी और साथ साथ नाज़रीन आप देख सकते हैं कि तकरीब भी जारी है, यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं, बल्कि एक और यहाँ पे हमारे चैनल का जाना माना नाम आया है। कैसा लग रहा है इन बच्चों को? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है कि एक दिन ऐसा हमें मिल रहा है कि जिस दिन हम इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, इनको खुशियाँ बांटें, इनके साथ हंसें, बोलें और जिएं, क्योंकि हमारे माशरे के वो बाहिम्मत बच्चे हैं जिनकी वजह से अगर हम इनको कॉन्फिडेंस दें तो यकीनन ये जितना कुछ देख चुके हैं, जितना कुछ सह चुके हैं, तो ये सोसाइटी में बहुत बेहतर और मैच्योर तरीके से अपना किरदार अदा कर सकेंगे बड़े होकर। चले, होप थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। और भी हमारे जो मेहमान आ रहे हैं नाज़रीन, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। आप देख सकते हैं कि इवेंट जो सजाया गया बहुत प्यारा इवेंट है, यहाँ पर मेहमान भी मौजूद हैं, बच्चे भी और आ रहे हैं, बच्चों को भी बुलाया गया है जो यहाँ पे आप डॉक्टर जो तशरीफ़ ला रहे हैं बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे प्यारे मेहमान, बहुत ही प्यारी शख्सियत और उनके जो बेटे हैं वो उतने ही प्यारे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? हम इन बच्चों के लिए कर बहुत कुछ सकते हैं और ये मेरे ख्याल जो तकरीब है ये एक इनिशिएटिव होता है, इट शुड नॉट बी द एंड, इससे आगे बढ़ना चाहिए हमें, आपको लगता है? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अगर ये आगाज़ है तो ये सफ़र रहना चाहिए, इसकी मंजिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंजिल मिल जाती है तो सफ़र रुक जाता है। तो ये सफ़र रहना चाहिए, मंजिल नहीं होनी चाहिए और ये सफ़र की सूरत में जारी रहना चाहिए। इसमें मुझे, आपको, हमको और हम एज अ होल, एज अ नेशन, हमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो देना है, वो देना चाहिए। ये हमारा ज़ाती, मजहबी, समाजी, कौमी फरीज़ा है और ये अल्फाज के तक नहीं होना चाहिए। हम में से हर एक को किसी न किसी जगह, हम में से बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों, इस तकरीब का, इस इनिशिएटिव का हिस्सा ना भी बन सकें तो एक अहद ज़रूर करें कि अपनी अपनी ज़ात में कहीं ना कहीं किसी न किसी यतीम के लिए कुछ बेहतर करेंगे, उसको पढ़ाने की कोई सही करेंगे, उसके लिए कुछ बेहतर करने की सही करेंगे और ये सही जो है ये हमारे अपने लिए होगी।
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने में? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो भारत का बेटा लेट गया, एक जुर्म का एतराफ, मक्कार दुश्मन फिर बेनकाब,
10 जुलाई आखिरी तारीख। मजीद भी आपको दिखाएंगे। रिकॉर्ड छुपाने नहीं देंगे। बारी पर झगड़ा, फिर वुकला गर्दी, ईद अपनों के संग, इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि सियासी शख्सियात के आने का सिलसिला इस तकरीब में जारी है। आसिफ हसनैन साहब पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई, ये वो बच्चे हैं कि जिनके बारे में सरकार का ये फरमान है कि जन्नत में सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा मेरे, और ये 2 उंगलियों का इशारा करके बताया कि जो यतीम की कफालत करेगा। आपको लगता है बतौर माशरा ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें हम कोताही बरत रहे हैं या ये हम ये निभा रहे हैं जिम्मेदारी? देखिए, 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि जहाँ हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही, जहाँ रियासत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही, वहाँ पर कम से कम एक तबका जो आम लोगों में से है, जो प्राइवेट सेक्टर से है, वो कम से कम निकल कर सामने आ रहा है। यही होता है किसी भी माशरे की बेहतरी या उसकी डायरेक्शन, अगर उसकी सिमत का अंदाज़ा किया जाए तो उसकी सिमत यही होती है कि आम आदमी एहसास करने लगा है कि हमें इन तमाम लोगों के लिए कुछ करना है जो कि यतीम हैं, मिस्कीन हैं, या वो लोग हैं जिनके कोई आगे पीछे नहीं है, या वो लोग जो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं। और आज जो ये तकरीबात जिस तरह से मीडिया ग्रुप इन्वॉल्व हुए हैं, दीगर लोग इन्वॉल्व हुए हैं, पहले तो हमारी ट्रांसमिशन, पहले हमारे प्रोग्राम मुख्तलिफ डिफरेंट अंदाज के होते थे, बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ होती थी उनको बिठाकर प्रोग्राम कर लिए जाते थे। लेकिन आज अगर इन बच्चों के साथ है और इन सारी चीज़ों को ये चीज़ें सिर्फ हाईलाइट करने के लिए नहीं, ये चीज़ें एहसास दिलाने के लिए होती है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है और ये ज़रूरत है, यही ज़रूरत है कि हम जो है वो इस अमल की तरफ जाएँ। भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। यहाँ पर हर तबके के लोग आ रहे हैं ताकि बच्चों को बता सकें कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। ले जी, यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया के जाने माने नाम भी मौजूद हैं जो इन बच्चों के हौसला हिम्मत बढ़ाने आए हैं। शाजिया हमारे साथ मौजूद है। शाजिया, कैसा लगा इन बच्चों के साथ आप? कैसा लग रहा है, मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि आज मैं जो हूँ ऐसे VIPs के दरमियान हूँ। शायद मैंने अपने 11 साल के जो मीडिया का करियर है एज ए जर्नलिस्ट,
मैंने इतना अच्छा फील नहीं किया इन VIPs गेस्ट के साथ कंट्रीब्यूट करके। रमज़ान मुबारक की बहुत सारी इबादतें तो हर इंसान, हर मुसलमान कर रहा है इस वक्त, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है ना कि करो मेहरबानी तुम अर्शे जबी बरी पर, खुदा मेहरबान होगा तुम पे अर्शे जबी पर। तो अगर हम इस रमज़ान में ये नेकियां करके इन बच्चों को ये एहसास दिला के कि ये यतीम नहीं है बल्कि ये एक बाहिम्मत बच्चे हैं और इनसे हमें एक इंस्पिरेशन मिल रही है, तो बस इससे ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, इनको बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, पाक से ज़मीन पार्टी के सरबरा जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मुस्तफ़ा भाई, इन बच्चों के पास आके खुशियाँ इनके साथ बांट के महसूस कैसा हो? मैं तो एक चीज़ सिर्फ जहन में आती है कि इंसान कितना नाशुक्र है, हम कितने नाशुक्र हैं कि अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें हमें दी हैं, लेकिन हम जो है कंप्लेंट्स करते रहते हैं। इन बाहिम्मत बच्चों को देखकर ये ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ने हमें किस किस नवाज़शात से नवाजा हुआ और हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते, हमने टेकन फॉर ग्रांटेड दे रखा है। और ये लोग हैं ज़िंदा रह रहे हैं, हिम्मत से रह रहे हैं, खुश भी हैं और इन तमाम अल्लाह ताला की इस तमाम एक्ट को कबूल करके उसको ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इन बाहिम्मत बच्चों के साथ हमारी भी लर्निंग है और हमारी हिम्मतों में इजाफे वाली बात है और रब का शुक्र अदा करने वाला, जैसे कहते हैं ना कि एक जेस्चर जो हम भूल से गए, देखते हैं बार बार कुदरत ने आपको ये कहा कि शुक्र अदा करने वाला इंसान कुरान शरीफ आप तर्जुमे से पढ़ें, इतनी दफ़ा जिक्र है कि इंसान बड़ा नाशुक्र है। आप यकीन करें इन बच्चों को देखकर वाकई ख्याल आता है कि बिल्कुल अच्छा, कुरान की बात गलत हो नहीं सकती, इंसान बहुत नाशुक्र है। तो भाई इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम लोग बहुत कुछ पाकिस्तानी बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन बच्चों के लिए खास तौर पे आपको लगता है स्टेट ने अब तक कुछ किया 70 सालों में? स्टेट तो यार जो जिंदा लोग हैं और जो जिनके मतलब स्टेट है कहाँ, स्टेट तो कि ये फंक्शंस है कहाँ। मुल्क में 3,50,000 बच्चे मर जाते हैं भूख और प्यास से हर साल, 3,50,000। 1 करोड़ बच्चे आज मुल्क में ऐसे हैं जिनका दिमाग और जिनका जिस्म नहीं बढ़ा, स्टंटेड ग्रोथ हो गई, वो किसी और बीमारी में नहीं, उनको ग़िज़ा नहीं मिल रही ऐसे मुल्क में मेल न्यूट्रिशन की वजह से, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिला उनको। 2.5 करोड़ बच्चे आपके स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो स्टेट तो इज इनविजिबल, कहीं पे नहीं है, जिसको जो दिल चाह रहा है मार रहा है जिसको। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, ये सिस्टम कोलैप्स हो गया आपका, ये सिस्टम कोलैप्स हो गया है। ये बच्चे तो शायद बेचारे खुद को ये तसल्ली कर लें अपने लिए कि भाई हमारा तो कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन जो जिनके दुनिया में है उनको भी नहीं पूछ रही ना स्टेट। तो भाई बहुत शुक्रिया, आप फिर भी आए यहाँ पे इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। नाज़रीन, बहुत प्यारी महफिल जो सजाई गई, यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी हौसला अफजाई की जा रही है। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब भाई, कैसा लगा इन बच्चों के दरमियान? हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं सर। मेरा ख्याल है कि ये हमारी मीडिया में होते हुए जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी है वो आज है। 20 साल के करियर में मुझे आज ऐसा लगा है कि जैसे हम वाकई एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जो इस सोसाइटी को तब्दील कर सकता है। देखिए, हमारे बारे में बहुत सारी बदगुमानियाँ लोगों की हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि शायद ये लोग जो है महज अपनी शोहरत के लिए ये काम करते हैं, लेकिन इस काम में आप देखिए अली, आप खुद इसका हिस्सा हैं, इसमें कोई बड़ी कंपनी इन्वॉल्व नहीं, इसमें हमने किसी से पैसे नहीं मांगे, इसमें हमने जो कुछ किया है अपनी मीगर सी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन के साथ किया है। तो मेरा ख्याल, मुझे आज इस पर बड़ा इस एक्टिविटी का हिस्सा होते हुए PMC का बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि हम एक ऐसा कॉज लेके चल रहे हैं आगे जो बेसिकली इस पूरी सोसाइटी का कॉज है, और इसके लिए कोई शख्स ना अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रहा है ना अपनी शोहरत का फ़ायदा उठा रहा है, बल्कि आप यूँ समझिए कि अपनी पोजीशन और शोहरत में से कुछ हिस्सा, वक्त का कुछ हिस्सा, पैसे का कुछ हिस्सा इसमें लगा रहा है। आप और मैं, आलिया, यहाँ पे हमारे PMC के दीगर दोस्त, सब मिलकर उसको अपने साथ जोड़ रहे हैं, अब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं। बुनियादी तौर पे हम कोई नया काम नहीं कर रहे, हम वो जो 1400 साल की ट्रेडिशन है, वो जो बीच में कुछ अरसे के लिए टूट गई थी, हम दरअसल वो दोबारा गिरा लगाना चाहते हैं। इसमें कामयाब। आलिया, कैसे समझती हैं आप इस कोशिश को जो आज एक्टिविटी की गई?
यकीनन पहली बार लाइफ में कुछ लग रहा है कि मैं भी कुछ किया है मैंने, और मैं पीएमसी का हिस्सा हूँ और ऐसी कॉज के लिए खड़ी हूँ। हमेशा मैं अपने लिए खड़ी होती हूँ, अपनी फैमिली के लिए खड़ी होती हूँ और एक अपने शो के लिए खड़ी होती हूँ। लेकिन आज पीएमसी के प्लेटफॉर्म से बाहिम्मत बच्चों का साथ देना यकीनन मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है, और आज मुझे लग रहा है कि यकीनन ऐसे और बहुत से काम हैं जो हमें करने चाहिए। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका,
कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं? नाज़रीन, इसी तकरीब में बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनको बताने के लिए कि फ़र्द तो आपके साथ है ही, हुकूमत भी आपके साथ है। सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात जनाब नासिर शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं। शाह जी, इन बच्चों के पास आके इनका हौसला बढ़ा के इनके सर पे दस्ते शफ़क़त रख के कैसा महसूस हुआ आज के दिन? इन बच्चों को हमारी ज़रूरत तो है ही, लेकिन अगर हुकूमत का भी एक नुमाइंदा आके इन पे हाथ रखता है इनके सर पे, तो कैसा लगता है? कैसा इनिशिएटिव है सर ये? देखिए, एक तो PMC को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक इतना बड़ा इवेंट रखा इन बच्चों के लिए। और ये हमारे ही बच्चे हैं, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इनको ऑर्फन या यतीम नहीं, बल्कि ये बाहिम्मत बच्चे हैं, और इनका ये नाम इनको हम पुकारेंगे। गवर्नमेंट हमेशा अपना रोल अदा करती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं इस सिलसिले में। हम लोग सिंध गवर्नमेंट में आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना है। हमारे काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं इनकी सपोर्ट के लिए। मज़ीद आज जो इतना बड़ा यहाँ पे इज्तिमा है जिसमें बहुत से अहले इल्म लोग हैं जो प्रैक्टिकली लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी सजेशंस भी बहुत अहम है। उस पर इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। हम सब ने मिलकर काम ये करना है जिससे इन बच्चों की बेहतरी आए, इनके मुस्तकबिल रोशन। सरोज साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए, लेकिन जो आप इनको वक्त दे रहे हैं ये इनका हक है सर। नहीं, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस अहम इवेंट में मदऊ किया। ये तो हम समझ रहे हैं कि एक महज़िब कौम की और एक उस कौम का जिसका मेराज दुनिया में जिसकी पहचान होती है, उस कौम के ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि उनके स्पेशल बच्चों की तवज्जो इसी तरह देनी चाहिए जिस तरह अपने बच्चों की तवज्जो होती है। और हम तो समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से अगर ये तोहफे हैं, अगर हम इनकी खिदमत कर सकते हैं तो मैं तो कम अज़ कम मेरी ज़ाती सोच ये है कि मेरी इबादत भी ये है, मेरी खिदमत भी ये है, और मेरी बख्शिश का ज़रिया भी ये हो सकता है कि अगर मैं किसी ऐसे मासूम बच्चों का लुक आफ्टर कर सकूं जिसका यहाँ पे पुरसान हाल नहीं है। तो इस हवाले से आप लोगों ने जो कोशिश की है, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज जिसने किया है, तो मैं समझता हूँ उनको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, और उनको बिल्कुल दिल की गहराइयों से मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ। और मैं इसको कहता हूँ कि सिंध की गवर्नमेंट जो है खुसूसी तौर पे पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये इसमें ताउन करना चाहिए, और सिंध गवर्नमेंट आपके साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आपके साथ है, हमारी मदद और हमारा ताउन आपके साथ है। और इजाफा फरमाए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, टेलीविज़न की जानी मानी शख्सियात भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो इस इवेंट को और मज़ीद हौसला अफजा बनाने के लिए आए। हम सब की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी थी। ये एक इनिशिएटिव है, इसके बाद जिस जिसकी जितनी तौफीक, जिस जिसका जितनी कैपेसिटी है वो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालता जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सब के वक्त का। वो वक्त ये वो है जो आप मुझे दे रहे हैं इस वक्त, लेकिन जो वक्त आपने इनको दिया इसके लिए शुक्रिया नहीं, क्योंकि ये इनका हक था हम पे। एंड आई एम ग्लैड कि वी मेड इट। कैसा लगा आपको बच्चों में आके? बहुत अच्छा लगा। एक शाम जो बाहिम्मत बच्चों के नाम थी, खुशी होती है। हम इतने गहमा गहमी के दौर में बहुत बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो ये एक जो PMC ने ये इवेंट रखा हुआ है वो हमें बहुत खुशी हो रही है। उन बच्चों के लिए साथ हमने गुजारा, अफ्तार किया, तो ऐसे इवेंट होने चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हमें इन किड्स को लेके कुछ करना चाहिए, और हमें लाइक ये तो एक इंडोर हमें ये कह लें कि मोटिवेशनल ओकेजन था, इवेंट था। हम इन बच्चों को लेके कहीं बाहर निकले, हम इन बच्चों को घुमाएं, हम इन बच्चों को दुनिया दिखाएं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनीवन जो उनके साथ ये सब कुछ करे। तो हमें इनको लेके निकलना है। आप तमाम चीज़ें इन बच्चों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, इसमें यकीनी तौर पर आपके साथ और भी हाथ होंगे जो आपको मदद करते होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज के दिन की मुनासबत से आम तक ये मैसेज पहुँचे, क्योंकि जितने कंट्रीब्यूटर्स होंगे आपके लिए उतनी आसानी होगी इस काम को अंजाम देने में। बेशक, बस आप सबसे ये इल्तिमास है कि ये जितने भी बच्चे हैं ना, ये अपने घरों से मतलब दूर सिर्फ खाने, रिहाइश और पढ़ाई के लिए हुए हैं।
اور یہ بڑا ایک دردناک چیز ہوتی ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے ماں کے سینے سے یا باپ کے کندھے سے اتر جائے صرف ان چیزوں کے لیے دنیاوی نا. تو بس آپ سب سے یہ ہے کہ ریکویسٹ ہے کہ ان سب کے لیے آگے سے آگے بڑھ کے کریں, اپنی اولاد سمجھ کے کریں. بذات خود میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں, تو میں ان سب میں اپنی بیٹی ڈھونڈتا ہوں الحمدللہ, اور میرا جتنا زیادہ وقت ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ گزارتا ہوں. بس ان سب کے لیے دعا گو رہیں اور ان کے لیے جو کوشش کر سکیں جانی جسمانی مالی دعا کی شکل میں جو بھی ہے وہ کرتے رہیں. ہاں بھائی, کیسا رہا پھر آج کا دن؟ بہت اچھا, مزہ آیا جی. جو سب سے زیادہ کھا رہے ہیں بچے, مزے سے کھا رہے ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. جی یہ دن ان کا ہے, ہر دن ان کا ہے. ہاں بھائی تم بتاؤ کیسا رہا تمہارا آج کا دن؟ ٹھیک ہے. اچھا, کیا پسند ہے تمہیں کھانے میں زیادہ؟ سادہ رول. رول پسند ہے تو کھاؤ, مجھے کیوں دیکھ رہے ہو, کھاؤ چلو شاباش, گڈ. اور جی شرارتی بچے, اچھا تم ادھر آؤ ذرا, میں بتاتا ہوں. میں ذرا, تم اپنے ساتھ والے کا بھی کھانا کھا رہے ہو اور اسے کھانے بھی نہیں دے رہے ہیں نا. اچھا کیا حال ہے بھائی تمہارے؟ ٹھیک ہے. اچھا کھانا پسند آ رہا ہے؟ اور کیا پسند ہے آپ کو؟ لول اور سموسا. لول اور سموسا پسند ہے, چلو ویری گڈ, ماشاء اللہ. ان بچوں سے کچھ اور باتیں بھی کریں گے, کچھ اور سوالات بھی پوچھیں گے. ایک خاتون یہاں پر بیٹھی ہیں, انہوں نے مجھ سے ایک بات آف ایئر کی, میں چاہتا ہوں کہ وہ آن ایئر وہ بات کہیں. انہوں نے ان بچوں سے جب انٹریکشن کیا, جب پوچھا, ایک سوال پوچھا انہوں نے. میم کیا پوچھا تھا آپ نے, کیا سوال تھا آپ کا ان بچوں سے؟ جی میں یہاں پہ آئی تو میں نے ان بچوں سے باتیں کی اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا بننا چاہتے ہیں نا, بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں. تو اس کا مجھے آنسر جو ملا ان بچوں کی طرف سے, یعنی کہ ان کے اندر اتنا مطلب ایم ان کا یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں. اور تقریباً زیادہ بچوں نے, میجورٹی بچوں نے یہ بولا ہم کمانڈو بننا چاہتے ہیں, ہم فورس جوائن کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ آرفنج ہومس میں میرا جانے کا اتفاق ہوا, ان بچوں سے میری باتیں ہوئی, تو وہاں پہ بھی موسٹلی بچے ایک ایم رکھتے تھے کہ وہ آرمی اور فورس اور کمانڈو کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو ان بچوں کا یہ ایم ہے اور اس کو جی بالکل. بچوں بتاؤ ذرا کیا بننا چاہتے ہو آپ ہیں؟ اوف, کیوں بننا ہے؟ کمانڈو بننا ہے, فوج میں جانا ہے؟ کیوں جانا ہے فوج میں؟ تم بتاؤ پہلے, کس نے کہا تھا کمانڈو یہاں سے؟ آپ نے کہا تھا, بتائیں. کمانڈو جی. کیوں جانا ہے فوج میں؟ لوگوں کی بچانا ہے. اچھا, کس کو بچانا ہے؟ لوگوں کو بچانا ہے. یار دیکھو اتنے سے بچے میں اس کو پتہ ہے کہ یار میں فوج میں جاؤں گا تو میں لوگوں کو, اور آپ بچوں نے کیا بننا ہے بڑا ہو کے؟ کمانڈو بننا ہے. یار کیا بات ہے, یہاں تو سب کمانڈو بننا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کا کیا ایم ہے؟ فوجی, کمانڈو, آرمی. ایک ہی چیز ہوتی ہے ویسے سب. میں آرمی بنوں گا. اور آپ بھائی؟ کمانڈو. تو ڈاکٹر, انجینئر, اینکر کسی نے نہیں بننا؟ اچھا, کمانڈو میں کیا ہوتا ہے؟ ہمت اور جذبات, اب وہ کمانڈو کہلاتا ہے. اللہ جو آپ بننا چاہتے ہو بچوں, اللہ آپ کو وہی بنائے انشاءاللہ. اللہ آپ کو آپ کے ایم میں کامیاب کرے. ناظرین جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آپ سے التماس ہے, اپنے کنٹریبیوشنز کو بہت سوچ سمجھ کے بہت دیکھ بھال کر دیجئے اور ایسے بچوں کے لیے مختص کیجئے جو حقدار ہیں اس کا. دیجئے اجازت.